सो कल राजा ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ PBIT ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਕਮਸ PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਰਾਜਾ टैक्स की बचता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देन वी डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड देन देयर इज अ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स देन वी डिडक्ट इक्विटी डिविडेंड एंड बचदा की है रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द कंपनी यस और नो देन आ कवर्स दे सारे फॉर्मूले कीते सी ICR cover for preference dividend EPS the formula PE ratio dividend yield on equity shares yes or no so question देखिए एक illustration 53 ਤੁਹਾਨੂੰ given है the capital of Star Company Limited is as follows 80,000 equity shares of 10 each कितना हो गया 8 lakh and 9% 30,000 preference shares of 10 each 3 lakh the following information has been obtained from the books of the company profit after tax given at 60% कितना 2,70,000 depreciation 60,000 equity dividend paid 20% market price per equity market price of equity share is rupees 40 you are required to calculate dividend yield on equity shares cover for the preference dividend cover for the equity dividend earning per share and the price earning ratio and last net cash flow पहला पॉइंट दसो की पूछा उन्हें डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स कल एक गल सीखी सी यील्ड मतलब डिपेंड्स अपॉन मार्केट प्राइस एक ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਦਿਸ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਪੇਇੰਗ 1000% ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੋਜ਼ 1000% ਡਿਵੀਡੈਂਡ या 100% डिविडेंड बच्चा खुश हो जाता पढ़ के जो न्यू इन्वेस्टर गया खुश हो गया 100% रीड करके 100% डिविडेंड पे कर रहा बट वो किदा होंदा परसेंटेज ਅਸੀਂ शुरू तो कहने आ फेस वैल्यू 100% पढ़ के हर इन्वेस्टर पहली बार तो अट्रैक्ट होता क्योंकि वैबसाइट ते कह लो NSE ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਹ ਲੋ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ company is currently going to pay 100% dividend but 100% of what राजा face value उस कंपनी ਦੇ मान लो शेयर ਦੀ face value ਸੀ 1 रुपए ਤਾਂ कंपनी ਦੇ 100 या मान लो 10 रुपीज भी मान लो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਵਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000% ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1000% मान लो कंपनी ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ face value was रुपए 1 1 रुपए ਦਾ 1000% ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ करो कैलकुलेटर पे 1 into 1000% 10 रुपीज डिविडेंड पर शेयर कितना मिलना ਤੁਹਾਨੂੰ 10 रुपीज बट दुनिया 1000% पढ़ के पता की सोचती कि जिन्ने ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ 1000% ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ 10000 ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 10000 ਦਾ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ 1000% ਦੇ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੇਅਰ 1000 रुपीज ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ 1000 ਉੱਤੇ डिविडेंड ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ 10 रुपीज नॉर्मल है कोई बड़ी गल थोड़ी है फिर फेस वैल्यू तो एक स्टार्टिंग रख ली जाती है ना बेसिक वैल्यू रखी जाती शेयर की बट उसकी मार्केट वैल्यू गोज अप एंड डाउन विद द टाइम शेयर इज करंटली ट्रेडिंग एट 1000 मींस इट्स ट्रेडिंग विद 990 प्रीमियम यस और नो दैट्स क्वाइट नॉर्मल बट जेड़ा 1000% पढ़िया दुनिया कहती 1000% जिदा आप इंटरस्ट कहने ना कि इन्ने % इंटरस्ट मिल रहा 10% इंटरस्ट दुनिया उदा सोच लेती 1000 बट उस साइड ते की लिखा होंदा 1000% ऑफ एक तरह फेस वैल्यू लिखते नहीं आओ वो साइलेंटली होंदा है अज्यूम्ड और
शेयर चलता पे 1000 ते और डिविडेंड हुण तुहानू मिल रहा 10 रुपए, तो 1% ही बनया होता था, फिर कितनी वड्डी गल होगी। फिर इस डिविडेंड लई इस शेयर ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? 2-3%। ਐਫਡੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 5%। ਫਿਰ ਇਸ 1% ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੁਆਟਰਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਕੁਆਟਰਸ ਦਾ 4% ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਡੀਜ਼ 4.55% ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਫਡੀਜ਼। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਯੈਸ অর ਨੋ? ਇਸ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਲਿਖ ਦੋ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ 1%। 1% ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 1%। ਹੁਣ ਇਹ 1% ਕੀ ਸੀ? ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੀਲਡ, ਵਿਚ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਯੀਲਡ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ पे ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਦੱਸਣੀ? डिविडेंड यील्ड। या तो रुपीस च लिखो या दुनिया ਨੂੰ ਯੀਲਡ ਰੇਟ ਦੱਸੋ। 1000% ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੈਸ অর ਨੋ? ਸਮਝੇ ਲੌਜਿਕ? ਸੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਮਸ ਆ। ठीक है, सो की पॉइंट आ गया 1% वाज द डिविडेंड यील्ड, इसलिए यील्ड ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਸਿੱਖੀ, ਯੀਲਡ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਜ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड यील्ड और एनी यील्ड कम्स आउट। देखो की क्या उन्होंने फिर डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, मैंने दसो इक्विटी शेयर ਨੂੰ डिविडेंड ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? 20%। 20% ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ। ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 20%, 2 ਰੁਪਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? 40 ਰੁਪਏ। ਉਹਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੀਲਡ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5%। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 20% ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 5% ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ? 5। यील्ड ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। 5% मिल रहा है, अगर ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਚ ਲਗਾਓਗੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਯੈਸ অর ਨੋ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚ ਐਫਡੀ ਤੇ 4% ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ, then it's okay। ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 8% ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੁੱਡ ਕੀ ਆ? ਯੀਲਡ। सेकंड वन, कवर फॉर द प्रेफरेंस डिविडेंड। फॉर्मूला की है, कल वाला चार्ट देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड का कवर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने दसो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 2,70,000 अपॉन की करना प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? फेस वैल्यू का 9%, 3 लाख का 9%, 27,000। 27,000 अपॉन 2,70,000 मतलब 10 टाइम्स। covers will the answer will come in times, so 10 times answer आ गया। yes or no? easy। third one, cover for the equity dividend। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਕਵਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਕੁਇਟੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी डिविडेंड। तो की करोगे हम? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स वो कितना फाइंड करोगे? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक पहुंचने ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਈਟੀ ਪਤਾ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿਰਫ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना, मींस दैट वाज 2,70,000 and 27,000, तो 2,43 2,43,000 अपॉन इक्विटी डिविडेंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 2 रुपीस पर शेयर ਸੀ।
कितने शेयर्स है 80,000 तो डिविडेंड कितना होया 1,60,000 दोस्तों एनी डाउट 243 अपॉन 160 एनी वन एनी डाउट नेपाली को डाउट राजा श्योर सृष्टि हैगा डाउट अच्छा कल नहीं आए थे हम ओके इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सानू दिस इज गिवन टुडे 2,70,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पता 27,000 सो प्रॉफिट अवेलेबल कितना आ गया 2,43,000 so that is the numerator for that formula 2,43,000 divided by इक्विटी डिविडेंड ਅਸੀਂ पर शेयर फाइंड ਕੀਤਾ ਸੀ 2 रुपीस है ना पर शेयर तो कितने शेयर्स आ 80,000 सो कितना डिविडेंड बन गया 1,60,000 so 1.52 times next one EPS अर्निंग पर शेयर लिखी आना साने प्रॉफिट्स अगेन अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब 2,43,000 अपॉन 80,000 रुपीस 3.04 EPS अर्निंग रुपीस चाहोगी देन प्राइस अर्निंग रेशियो फॉर्मूला नाम से लिखिया मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस पता सी 40 EPS ਤੁਸੀਂ फाइंड कर लिया रेशियो दे दो ਉਹਦੀ लास्ट वन नेट कैश फ्लो ਲਈ डाटा देखो की गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट्स गिवन सी कुछ की रिवर्स कर दे नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन कितना 60,000 ऐसे देखो 2,70,000 प्रॉफिट ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है 60,000 द नॉन कैश एक्सपेंस रिवर्स करोगे यस और नो और एचओ हले पे की करने डिविडेंड्स प्रॉफिट जो डिविडेंड्स पे हुए केड़े इक्विटी डिविडेंड आल्सो प्रेफरेंस डिविडेंड वाज 27,000 इक्विटी डिविडेंड वाज 1,60,000 बट जेड़ा नॉन कैश एक्सपेंस है वापस ऐड बैक करता तो कैश फ्लो कितना होया रुपीस 1,43,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स करिए सॉल्व देखो कहते कंपनीज इक्विटी शेयर्स इलस्ट्रेशन 54 इक्विटी शेयर्स कहते आर बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट एट ₹48 पर शेयर मार्केट प्राइस की चल रहा 48 विद द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 तो मार्केट प्राइस भी दिख गया प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस अपॉन EPS और मार्केट प्राइस पता कैन यू गेट द EPS फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया इजी 6 रुपीस आगे पढ़ो company's dividend payout is 80% very important concept for these questions dividend payout is 80% payout ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ very important ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਜੋ अर्न ਕਰਦੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਚ ਕੀ ਕਹੀਦਾ profits available for equity shareholders ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ अर्न ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਕਹੀਦਾ ਬਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अर्निंग पर शेयर Earning per share is what the company is earning for a single equity shareholder. Yes or no? Yes or no? But ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Some earnings are given to you in the form of dividend. ਪਹਿਲਾਂ amount level ਤੇ ਸੋਚੋ profits available for equity shareholders. ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? या तो distribute कर दोगे in the form of dividend या distribute नहीं करोगे अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इट रिमेन्स लाइक अ रिटेन अर्निंग यस और नो यही दो कंसेप्ट है उन्होंने पर शेयर ते भी लगाओ ना EPS चो either you will give DPS dividend per share and balance will be retained earning per share yes or no agree जिन्ना तुसी DPS पे कर दे राजा उत्थों समझ आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो मान लो 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर सी 6 रुपीज डिविडेंड देता मीन 60% इज योर डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड 40% इज योर रिटेन अर्निंग्स एग्री यस और नो सो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला की बन गया DPS अपॉन EPS 6 upon 10 into 100 60% यस और नो
डिविडेंड पे आउट रेशियो की बन गया डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। सर डिविडेंड दिता कितना शेयर पे, कमाया कितना सी 10 रुपए, मींस आई एम पेइंग आउट 60%। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%। दिस इज द कंसेप्ट। क्वेश्चन ने की पूछा दिता की है, सॉरी, डिविडेंड पे आउट इज गिवन 80%। ओके, नेक्स्ट, इट हैज 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड नो प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं। 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। सेकंड पॉइंट उन्होंने पूछा नेट इनकम। नेट इनकम अपने एक फॉर्मेट ਤੇ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਬੀਆਈਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਪੀਬੀਟੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈक्स, देन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड की बचूगा, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर उत्थे मैं लिखदा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, आ चीज फाइंड कर ली ना तुसी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड करोगे उस तो बाद क्या आ जांदा, डिवाइड करके ईपीएस, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यू गेट ईपीएस। अगर मैं यहां वैल्यू पूछना चाहवा, कैन यू गेट दिस वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग दीज बोथ, earning per share into number of equity shares, you will get profits available for equity shareholders। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, रेफरेंस डिविडेंड ਸੀ, yes or no, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ, and profit after tax is the net profit of the company। सेकंड पार्ट ने पूछा की है नेट इनकम। प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चंस नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है। so if I multiply both of them, I'll get profits available for equity shareholders and preference dividend the absence, so same as net income, means easily I can get the net income by multiplying the number of equity shares with EPS, number of equity shares with EPS, we got net profit, yes or no। रीजन समझे, इतो बुक चो रीड करोगे 1% नहीं समझ आना कितना फाइंड होया, क्यों फाइंड होया, और कॉपीज भी सिर्फ इतना लिख लोगे समझ नहीं आना, यू नीड टू राइट द रीजन, yes or no। इस फॉर्मेट में एज अ हिंट साइड पे लिखोगे प्रॉपर कि क्यों, या इधर यू कैन शो इन दिस वे ओनली, क्यों नु मल्टीप्लाई करके डाउनवर्ड तो अपवर्ड गए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस नेट प्रॉफिट, सो देयरफॉर इधर नीचे लिख दोगे नेट इनकम इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख, या जो भी आया सी मल्टीप्लाई करके 6 लाख। एम आई क्लियर, यस और नो। थर्ड वन, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कितना होगा हम, डू यू नो द ईपीएस, ईपीएस 6 रुपीज, तो 6 रुपीज अर्न कर रहे हो, वो जो पे आउट कितना कर रहे हो 80%, तो 6 रुपीज 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, मींस यू आर पेइंग 4 रुपीज 80 पैसे एज डिविडेंड, तो डीपीएस मिल गया। रितिका कमा कितना रहे 6 रुपीज, पे आउट कितना कर रहे हैं 80%, मींस 4 रुपीज 80 पैसे, सो 4.80 इज योर डीपीएस ना, डिविडेंड पर शेयर, मिल गया डीपीएस। और मार्केट प्राइस ऊपर है 48, तो 4.8 अपॉन 48 कम्स आउट टू बी 10%। इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, बट मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, ਹੁਣ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ। ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, इसलिए क्वेश्चन ने कोई मेंशन तो किया नहीं, बट गिवन मार्केट प्राइस भी है बुक वैल्यू भी है, दोनों के अकॉर्डिंग ही फाइंड करता। सो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा, किन्ने प्रॉफिट्स है इक्विटी वाले वाले। एक चीज दसो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दे की आंदा, यस और नो, और ये आप फाइंड कर चुके ना, दैट इज 6 लाख अपॉन, अगर बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस है 6 लाख पूरे अमाउंट है 1 लाख शेयर्स का, तो नीचे मार्केट प्राइस भी 1 लाख शेयर्स का लोगे। मार्केट प्राइस वॉज 48 रुपीज पर शेयर, मल्टीप्लाई करता 1 लाख ना,
इंटू 100 12.5%। सेम वे 6 लाख अपॉन अगर बुक वैल्यू से करना तो 40 रुपीज अकॉर्डिंग 15%। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो जाऊगा? ठीक है, बाकी कल करते हैं। 6 was EPS ना राजा, दैट was डिविडेंड पे आउट रेशियो राजा। अगर मैं वैसे कहा कि इक्विटी डिविडेंड पे ਆਪਾਂ कितना करते 20%, दैट्स ऑन फेस वैल्यू, बट इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज गिवन दैट डिपेंड्स अपॉन ईपीएस। ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ डिविडेंड पे आउट रेशियो ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कि if I am earning 10 rupees and paying 6 rupees means my payout ratio is 60%. I pay out to the shareholders in the form of dividend 60%. 60% of what I am earning per share. That's the dividend payout ratio. Means formula की बनया payout ratio था DPS upon EPS. So reverse भी उतना ही काम करूँगा ना। क्लियर है जा? बाकी गल करते हैं ना।